নমস্কাৰ প্ৰিয় সতীৰ্থসকল, আপোনালোকক হেমছ একাডেমীলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হেমচন্দ্ৰ দত্ত, সম্প্ৰতি মই কানেক্ট হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। প্ৰিয় সতীৰ্থসকল, যোৱা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পজিটিভিটি উইক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজি হৈছে আমাৰ 7টো দিন, অৰ্থাৎ আজি আমাৰ কনক্লুডিং ডে। আমাৰ বাবে পৰম আনন্দৰ কথা যে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সুদূৰ পুনেৰ পৰা আমাৰ সৈতে কানেক্ট হৈছে আমাৰ বান্ধৱী তপস্বিনী মহন্তি মহোদয়া। পুনতে মই আজিৰ যিখন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীখন পাঠ কৰি দিব খুজিছোঁ। Now I am going to read out the agenda of the concluding day. বৰগীত পৰিবেশন উপাসনা শৰ্মা. Upasana Sharma, my student, she is going to perform one Borgit, noble number of Sribanta Shankardev. Bikhisto Atithi Sinaki Porbo, a few words about our guest, Tapaswini Mohanty. Bikhisto Atithi Bhakhan, speech from Tapaswini ji, our guest. Bikhisto Atithi meditational session, a meditation session to be conducted by Tapaswini ji. Homozwar Ekachar, words from the participants. Holagor Fry, goods of thanks. So now I'm going to request Upasana Sharma to perform one Borgit. Upasana. Namaskar. Good evening to everyone present here, and a very happy new year to Tapaswini ma'am, and welcome to our academy. I'm Upasana Sharma and I'm from Nagaon, and I have done my schooling from Guwahati, then my graduation in history from IP College, Delhi University, and I have done my master's in ancient Indian history from Northeastern Hill University. And since then, I have been preparing for an exam, and recently I have joined SIR's Academy, and I am a student of Hans Academy, and I completed the advanced Ho'oponopono course with SIR last month. And I would like to take this opportunity to express my gratitude towards SIR for introducing us actually to this beautiful world of healing. Thank you, sir, and thank you for giving me this opportunity to perform throughout this positivity week. I'm really thankful, sir. This has given a boost to my confidence, and thank you. Today I'm going to perform a Borgit. It's a devotional song. This one was composed almost 500 years ago by the Mahapurush Srimanta Shankardev. He was a Vaishnavite Bhakti saint from Assam. There were several Bhakti saints during the 15th, 16th century throughout India, actually. And similarly, Shankardeva, he also played a key role in uniting the Assamese society during that period. So I hope you like it. Boiri pramana nihasara nahanidana huno re huro boiri pramana nihasarana hanidana Rama nama jama hamara kahajiye Rama nama jama hamara kahajiye
সমদলে কোয়লি পয়া শুন শুন রে শুন বৈৰী প্ৰমাণ নিশা চৰণা শনিদান ধাত প্ৰকট পতু কোটি কোটি কপি গিৰি গৰ গৰ পদ ঘাৱে ধাত প্ৰকট পতু কোটি কোটি কপি গিৰি গৰ গৰ পদ ঘাৱে বাৰি ভীতিৰ তৰি কৰে গুৰুতৰ গিৰি ধৰি ধৰি সমৰ কধাৱে হাত ঘাত বহু বাত বিয়পি চৌগৰে বেঢ়লি লংকা হাত ঘাত বহু বাত বিয়পি চৌগৰে বেঢ়লি লংকা গুৰু ঘন ঘন ঘোষ ঘূৰিখন গৰ্জন শ্ৰৱণে জনময় শংকা শুন শুন ৰে শুন বৈৰী প্ৰমাণ নিশা চৰণা শনিদান ধীৰ বীৰ সুৰ শেখৰ ৰাঘৱ ৰাৱণ তুৱা পৰি ঝাম্পে ধীৰ বীৰ সুৰ শেখৰ ৰাঘৱ ৰাৱণ তুৱা পৰি ঝাম্পে সুৰ নৰ কিন্নৰ হন ধৰ 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 মোহিধৰ তৰহি প্ৰকাম্পে অন্ধ মুগুধ দশ স্কন্ধ পাপ বুধ জানকী শিৰত চৰাই অন্ধ মুগুধ দশ স্কন্ধ পাপ বুধ জানকী শিৰত চৰাই ৰঘুপতি পদবৰ ধৰ ৰজনীশ্বৰ শংকৰ কহতু পাই শুন শুন ৰে শুন বৈৰী প্ৰমাণ নিশা চৰণা শনিদান নিশা চৰণা শনিদান নিশা চৰণা শনিদান Thank you. Music has a healing effect. Thank you, Upasana, for such a beautiful performance. Thank you so much. প্ৰিয় সতীৰ্থসকল, মই পুনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আছে বিশিষ্ট অতিথিৰ চিনাকি পৰ্ব। A few words about the guest. প্ৰিয় সতীৰ্থসকল, আজি আমাৰ সপ্তম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ বিশিষ্ট অতিথি হৈছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী তপস্বিনী মহন্তী মহোদয়া। তপস্বিনী মহন্তী মহোদয় মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ ৰাম বাৰ্মাৰ ছাৰৰ ক্লাছত। ভাৰত বিখ্যাত ৰাম বাৰ্মা ছাৰ, নিউৰো লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ ফাদাৰ বুলিব পাৰি। তেখেতৰ ক্লাছত লগ পাইছিলোঁ। তপস্বিনীজী মূলতঃ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ এক্সপাৰ্ট। তেখেতে ভাৰতৰ এটা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কোম্পানীৰ তেখেত বিষয়া হয় আৰু তেখেতে গাফো থেৰাপি নামৰ এটা হিলিং মডেলিটি তেখেতে প্ৰেক্টিছ কৰে, মাষ্টাৰ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ আৰু তাৰ টিচাৰ। তেখেতে অনলাইনত গাফো থেৰাপি শিকায়।
ব্যক্তি হিচাপে তপস্বিনীজী বহুত মৰমীয়াল মানুহ, সংবেদনশীল আৰু সদায় মানুহক সহায় কৰোঁকৈ থাকে। আৰু মোৰ ব্যক্তিগত যি উত্তৰণ তাত তেখেতৰ এটা ভূমিকা আছে আৰু তেখেতক বন্ধু হিচাপে পাই মই বহুত সুখী। আপোনালোকে যিসকল মোৰ ফেচবুকৰ বন্ধু, আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যে আজি কেইদিনমানৰ আগত ফেচবুকত মই 2খন চিঠি লিখিছোঁ, অপেন লেটাৰ, পাব্লিক লেটাৰ। এখন চিঠি লিখিছোঁ প্ৰফেচাৰ কল্যাণ ভূঞাৰ নামত আৰু ইখন লিখিছোঁ মই তপস্বিনী মহন্তীৰ নামত। মোৰ সেই লেটাৰ দুখনৰ যোগেদি আচলতে এটা মই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছিলোঁ। বাৰ্তাটো কি যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত কিছুমান মানুহৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে আৰু সেইটো আমি আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে আমি ক'ব পাৰিব লাগে। যেতিয়া আমি ৰাজহুৱাভাৱে এই কথাটো কওঁ, এটা ৰিপল অফ পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হয়, ৰিপল অফ পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন। আৰু সেইটোৱে অন্য মানুহকো আচলতে তেনেকুৱা এটা পথত যাবলৈ মটিভেট কৰে। সেইকাৰণে মই সেই লেটাৰখন লিখিছিলোঁ। এখন তপস্বিনী মহন্তী নামত লিখিছিলোঁ আৰু এখন লিখিছিলোঁ প্ৰফেচাৰ কল্যাণ ভূঞাৰ নামত। প্ৰিয় সতীৰ্থসকল, তেখেতক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে পাই মই অত্যন্ত সুখী। মই তেখেতক ফোন কৰিলোঁ সেইদিনাখন আৰু তেখেতে হ'ব বুলি ক'লে, য়েছ বুলি ক'লে। Dear friends, today is the grand conclusion of our Positivity Week. I'm happy to introduce a special guest, Tapaswini Mohantiji, who has joined us from Pune. Tapaswini and I were class friends during our NLP classes with Ram Verma sir. She is a computer expert and works with one of India's top companies. She also teaches Gepho therapy online. As a person, Tapaswini is kind, sensitive, and always ready to help others. She has greatly contributed to my personal growth, and I feel blessed to have her in my life as my friend. It is an honor to have her as our guest today to inspire us at the end of this wonderful week of positivity. Now the mic over to Tapaswini ji. हेमचंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद अम, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और जैसा कि ऑलरेडी बोल चुके हैं हेमचंद्र जी, मेरा नाम तपस्विनी मोहंती है और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। एक एमएनसी में काम करती हूँ और इसके अलावा मेरे कुछ हॉबीज हैं हीलिंग फील्ड में ही लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे होके हील हो जाने चाहिए। तो उस वजह से मैंने धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को लेके स्टार्ट किया। और जैसा कि हेमचंद्र जी बोल चुके हैं, राम वर्मा सर के पास हम दोनों ही पढ़ाई करते थे, वहां से जाके हम लोग फ्रेंड्स बने और काफी एक दूसरे को हम दोनों ने सपोर्ट भी किया है डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। और मैं ग्राफोथेरेपिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। तो जनरली ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हैंडराइटिंग को देख के बता सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी क्या है। मैं फोकस करती हूँ कि जो भी पर्सनालिटी हो वो कैसे ठीक हो और लोगों के काम में आ जाए। तो इसलिए मैं क्लासेस लेती रहती हूँ, बट मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है उसके चलते मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं ले रही हूँ अभी। और एक बात बोलना चाहूंगी, हेमचंद्र जी बहुत ही एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड पर्सन है। वो अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, सारी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेटेड रहते हैं। और उनमें एक भावना रहती है कि कैसे गिव करें, ज्यादा दे सकें वो। तो उस चीज को लेके एक बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी बात करते हैं। उनका वही मोटिव रहता है कि मुझे ये सीखना है लोगों के लिए करना है। ये एक थॉट प्रोसेस उनका रहता है, विच इज अ वेरी गुड ह्यूमन क्वालिटी, लोगों का वो रहना चाहिए। और ये एक तरीके से एक इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग फैक्टर है इनमें। मैं जितना भी बोलूं वो कम पड़ेगा एक्चुअली। ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि इनका जो होपोनोपोनो का जो इन्होंने सीखा है वो मुझे भी उन्होंने सिखाया था। एक चीज वो काफी अच्छा है और वो बहुत अच्छे से हील कर लेता है। मेरा मानना है कि हमें
इनफैक्ट एक्चुअली मैं अगर अपने आप को 6 साल पहले देखूं तो मेरा ये मानना था कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए और ओनली दूसरों के लिए करना चाहिए, और उस चीज में हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए अपने आप को, ये मेरा मानना था। जैसे जैसे मैं हीलिंग फील्ड में आती गई, मुझे मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी ये है कि अपना जो कप है वो फुल रखें हम। हमारे पास अगर एक पानी का ग्लास है, अगर वो फुल ना रहे तो हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें अपने अंदर का जो है वो सब साफ रखना पड़ेगा, उसको पूरा हील करना रहेगा, ताकि हम अंदर से अच्छे बने, ताकि दूसरों को दे सकें। और जनरली मैं पहले जैसे सोचती थी कि हाँ ठीक है, दूसरों के लिए करना चाहिए, बट दूसरों के लिए करना बहुत ही अच्छी बात है, बट जब तक खुद को ठीक ना कर दें तब तक हम दूसरों के लिए कर नहीं सकते। ये एक्चुअली सेल्फ लव है। इससे क्या होता है कि हम अपना जो, मतलब अपने आप से जो प्यार करते हैं, उसकी वजह से हम जितना ग्रो करते हैं, उसके चलते हम दूसरों का भी ग्रोथ के कारण बन सकते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली हम अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलते हैं, जो कि जहाँ पे के सब लोग मिलके ग्रो होते हैं। तो एक्चुअली मैंने सेल्फ लव के ऊपर एक बुक भी लिखा है, कि कैसे कैसे मेरे लाइफ में सेल्फ लव धीरे धीरे आती गई। ऐसे हुआ कि एक्चुअली मैं एंजाइटी के दौर से गुजर रही थी। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ रखा था, और उसी टाइम पे मैं घर में दिन रात ऐसे ही बैठी रहती थी, बच्चों को स्कूल से लाती थी, यही सब काम रहते थे बस। और दिन भर दिमाग में यही रहता था, जॉब कैसे मिल जाए बस, क्योंकि छोड़ दिया था तो दूसरे जॉब के लिए बस टेंशन रहता था। उस बीच में मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एक मेडिटेशन का एक छोटा सा सेशन चल रहा था, उसका एक लिंक मुझे दिया, ज्वाइन किया मैंने। 15 मिनट का जो सेशन था, उसके बाद एक बहुत ही पीसफुल, एक अच्छा लगा, पीस मिला। उस पीस के चलते वो गाइडेड मेडिटेशन था, तो समझ में ये आ रहा था कि मैं खुद के लिए कैसे करूं, तो कहीं और जाना पड़ेगा, और होता कहाँ है, ये ढूंढते ढूंढते कहीं और मिला, कहीं और मिला। ऐसे होते होते फिर समझ में आया कि नहीं, सारे रिसोर्सेस खुद के पास ही अवेलेबल हैं। पहले, उससे पहले जो मैं सैड शॉर्ट फिल्म्स देखती थी यूट्यूब में, वो धीरे धीरे चेंज होता गया। जैसे जैसे मैं गाइडेड मेडिटेशंस देखती गई, या तो फिर उसी तरह के मोडालिटीज में आती गई, मैंने देखा कि अंदर का जो एक एंजाइटी था, दिन रात रोने के लिए, मतलब मैं तैयार रहती थी कि मैं कैसे रो लूं थोड़ा, क्योंकि अंदर मुझे बहुत ही हैवी फील होता था। मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अकेले रहने से रोना ज्यादा आता था। तो इसलिए मैं जब भी बच्चों को लेके जाती थी कहीं पर बाहर, तो वहीं पे ही बैठी रहती थी, ताकि रोना ना आए दूसरों के सामने। बट धीरे धीरे मैंने देखा, जैसे ही मैंने अपने ये लाइफ को चेंज करना स्टार्ट किया मेडिटेशन के थ्रू से, चीजें चेंज होती गई। और वो जो सैड शॉर्ट फिल्म्स की बातें मैं कर रही हूँ, जो कि मैं दिन भर देखती रहती थी पहले, और उसके साथ कंपेयर करती थी कि हाँ, मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे रिप्लेस होते गए गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस के साथ। जैसे जैसे वो रिप्लेस होते गए, मेरा जो प्लेलिस्ट है चेंज होता गया, और टाइम मेरा ज्यादा उसमें जाने लगा। और वो जो कामनेस है, वो कंपेयर नहीं हो सकता है किसी चीज के साथ। फिर समझ में आया कि अगर ये मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है तो सबके लिए भी काम करेगा, दुनिया में और भी लोग हैं, उनको भी ये सब चाहिए। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स को सेंड करने लगी, जिनको भी प्रॉब्लम्स रहते थे, जो भी पहले जैसे चलता था मेरे लाइफ में, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, और वो लोग भी वही बोलते थे कि उनकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। धीरे धीरे ये जो टॉक्स है ये चेंज होने लगे। उनको फिर मैं धीरे धीरे मेडिटेशन के वीडियोस देने लगी कि हाँ, ये मेरे लिए काम किया, आप भी ट्राई कर लो। तो ऐसे होते होते मैंने देखा कि नहीं, मैं लोग अप्रोच कर पा रहे हैं, और कभी भी किसी को भी कुछ जरूरत पड़े तो वो पूछते हैं मुझसे। तो फिर होते होते धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन के क्लासेस छोटे छोटे लेने स्टार्ट किए, और वो होते होते फिर ग्राफोथेरेपी का ये एक कोर्स मिला। उसके चलते फिर समझ में आया कि हमारे हैंडराइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता ही नहीं रहती हैं, और कैसे मेरे खुद के सैडनेस उसमें दिखते थे, और कैसे वो चेंज हो रहे थे हैंडराइटिंग के साथ चेंज होते हुए मैंने देखा। उसके चलते मैंने फिर वो चीज अपना लिया, और एनएलपी का भी क्लास किया। मैंने देखा कि हाँ, उसमें बहुत अच्छे से हीलिंग हो पा रही है।
चाहे वो सरदर्द हो या चाहे वो पास्ट के ट्रॉमास हो, वो सब हो रहे हैं ठीक से। तो ऐसे होते होते चीजें चेंज चेंज होती गई। और और आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए, मैं पूरे 1 घंटे में आंसर देना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम गाइडेड मेडिटेशन करवाएंगे। Let's do one thing. First, you conduct the guided meditation. ओके। Then you take up the queries. श्योर। Okay, thank you. You start. ओके। अब आप लोग धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। मेरी हिंदी सबको समझ में आ रही है? अगर मुझे धीरे बात करनी है तो आप लोग बोल सकते हैं। सीधे बैठते हुए रीढ़ की हड्डी सीधे रखें। अब आप अपने हाथ पैर सब ढीला छोड़ दें। डीप ब्रेथ लीजिए और उसको छोड़िए। जब आप डीप ब्रेथ छोड़ रहे हैं, फील कीजिए कि आपके अंदर से कोई एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन है, वो धीरे धीरे बाहर जा रही है। डीप ब्रेथ लीजिए एक बार, छोड़िए। उसके साथ आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस धीरे धीरे जा रही है। और एक डीप ब्रेथ लीजिए और फील कीजिए कि उसके साथ आपकी जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए, फील कीजिए कि आपके अंदर की सारी एंजाइटी, कुछ भी वरीज जो भी है, सारी चिंताएं बाहर जा रही हैं। अब आप धीरे धीरे विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सच है, क्या इमेजिनेशन है। जब आप इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में सच होना स्टार्ट हो जाता है। फील कीजिए एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य शक्ति, वो ऊपर से आ रही है, ऊपर से फ्लो होके आ रही है, आपके सर के ऊपर पहुंच रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट हो रही है। ये डिवाइन लाइट जैसे ही अंदर जा रही है, आपके अंदर के जो जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे सैडनेस, एंगर या और कुछ भी वैसे इमोशंस हैं, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलती जा रही है। और जैसे जैसे ये इमोशंस नीचे धकेलती जा रही है, उसके साथ साथ दिव्य शक्ति जो कि अबंडेंस से भरा है, वो आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स में फैल रहा है। ये जो अबंडेंस है, ये हेल्थ का अबंडेंस है, ये वेल्थ का अबंडेंस है, ये रिलेशनशिप का भी अबंडेंस है, स्पिरिचुअलिटी का भी अबंडेंस है। क्योंकि जो दिव्य शक्ति होती है, उसके पास सारी चीजें भरपूर रहती हैं। अबंडेंस जो कि पूर्णता है, वो हमारे अंदर भरती जा रही है। अब ये पूरे ब्रेन में भर गई है।
उसके साथ साथ आपके फेस में, फेस की सारी जगह पे ये भर रही है और सारे नेगेटिव इमोशंस नीचे उतर रही हैं। दिव्य शक्ति इन नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे इकट्ठा करके नीचे धकेल रही है। अब ये गले से उतर रही हैं। ये सारे नेगेटिव इमोशंस गले से होके आपके आर्म्स, चेस्ट, लोअर बैक, अपर बैक, ये सारे जगह से जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको नीचे की तरफ धकेल रही हैं और इन सब जगह पे दिव्य शक्ति भरती जा रही है। ये जो डिवाइन लाइट है, दिव्य शक्ति है, आपके पूरे अंदर बहुत अच्छे से भर रही है। अबंडेंस। फिर धीरे धीरे ये आपके स्टमक, चेस्ट, लंग्स, पैनक्रियास, जो जो भी पार्ट्स हैं वो सारे जगह पे भरती जा रही हैं और नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। जब तक हम में से ये सब चीजें नहीं निकलेंगी तब तक हमारे अंदर अबंडेंस भरने में डिफिकल्टी होगी। जब हम कोई चीजें जो कि विकार हैं उनको बाहर निकालते हैं तभी हमारे अंदर पूर्णता आ सकती है। अब ये हमारे लेग्स, काफ मसल्स, थाइज, ये सब जगह से भी नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करके नीचे की तरफ धकेल रही है। अब आप फील कीजिए धीरे धीरे दिव्य शक्ति भी इन सारी जगह में भरती जा रही है। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, मस्तिष्क से लेके ये पूरे शरीर में, वो खुश हो रही हैं, खिलखिला के हंस रही हैं। अब तक नेगेटिव इमोशंस के वजह से वो डरे हुए थे, वो चिंता में थे। अब दिव्य शक्ति के वजह से वो हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो जो गाना है उसको सुनिए। उनका गाना है कि वो ग्रेटफुल हैं, उनके पास जो भी है उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। वो अपने आप को अबंडेंट फील कर रहे हैं और वो अबंडेंस के लिए वर्दी हैं। वो सब चीजों को वो गाना गाते हुए बोल रहे हैं, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। मैं अबंडेंस के हकदार हूँ। अबंडेंस मेरे थ्रू से एफर्टलेसली फ्लो करती जाती है। सारे ब्लेसिंग्स जो है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, ये मेरे अंदर आ रही हैं और मैं इनको रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सेल्स, ये सारे गाने गाते हुए नाच रहे हैं। फील कीजिए वो गानों को, फील कीजिए उनके अंदर जो डांस चल रहा है उसको। एक बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही है क्योंकि जब ये विकार नीचे की तरफ जा रहे हैं तब अंदर की प्योरिटी बढ़ती जा रही है और उसके वजह से एक सुगंध आ रहा है। वो सुगंध को स्मेल कीजिए। देखिए आपके सेल्स कैसे डांस कर रहे हैं, सुनिए वो कैसे गाना गा रहे हैं। मैं अबंडेंस को स्वीकार करती हूँ, मैं ये ब्लेसिंग्स को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अंदर इन अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल हूँ। इस तरह के गाना वो लोग गाते जा रहे हैं अपने अंदर। जैसे जैसे नीचे की तरफ ये सारे सेल्स
खुश होते हुए डांस करते जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस नीचे जाती जा रही हैं और वहां पे जितने भी सेल्स हैं वो सब खुश होते जा रहे हैं। वो अपने आप को और एक दूसरे को जब टच कर रहे हैं डांस करते हुए, तब उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है। फील कीजिए इसको। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे खाना भी वो लोग खा रहे हैं खुश होके, वो भी टेस्ट कीजिए। वैसे होते हुए सारी जो नेगेटिव इमोशंस है आपके पैर के नीचे जा रही हैं और वो पृथ्वी माता के अंदर समा रही हैं। अंदर से अंदर, बहुत अंदर जा रही हैं, पृथ्वी के कोर की तरफ हो जा रही हैं। आपके अंदर दिव्य शक्ति पूरी तरह से भर गई है। वो दिव्य शक्ति आपके अंदर सारे तरह के अबंडेंस ला चुकी है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में और स्पिरिचुअलिटी में आपको अबंडेंस फील हो रहा है। आपको अंदर से हैप्पीनेस महसूस हो रही है, पीसफुलनेस महसूस हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ के सारे एरियाज अभी हील्ड हैं और अबंडेंट हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, वो जो नेगेटिव इमोशंस है कोर तक पहुंच चुके हैं। पृथ्वी माता एक बहुत बड़ी हीलर है, जो कि हम सबको हील करती है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस अंदर गए, उन्होंने उसको भी हील कर दिया। ये सारे इमोशंस जो अंदर गए हैं वो अभी हील्ड इमोशंस हैं। वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव नहीं रहे, वो भी पॉजिटिव इमोशंस बन गए हैं। वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये जो एनर्जी है ये अभी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है अच्छी एनर्जी में। और ये जो अच्छी एनर्जी है पृथ्वी में जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है उन सबको हील करने में काम में आएगा और दूसरों के जीवन में अबंडेंस देने में काम में आएगा। आपकी ही वो एनर्जी जो पृथ्वी माता के पास गई थी वो दूसरों की हीलिंग में अभी काम में आ रही है। आप और ये एनर्जी सेम है और ये जो एनर्जी है वो दूसरों के पास जा रही है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों या ह्यूमन बींग्स हों। सबके पास जाते हुए सबको हील कर रही है। जैसे जैसे ये सब हील होते जा रहे हैं, आपको एक वननेस भी महसूस हो रहा है कि सिर्फ आप ही अबंडेंट नहीं है, पृथ्वी में सब कुछ अबंडेंट है। और ये सब आपकी ही एनर्जी है जो कि जाके पूरी पृथ्वी को हील कर रही है। जैसे पृथ्वी माता एक हीलर है, वैसे आप भी एक हीलर हैं। अपने अंदर के वो हीलिंग जो है उसको महसूस कीजिए। वननेस जो है आपके और सबके बीच में, उसको अभी महसूस कीजिए। अपने अंदर के जो अबंडेंस है उसको फील कीजिए। उसको फील करते हुए कुछ देर वहीं पे समय बिताएं अपने अबंडेंस के साथ। अब आपको बहुत ही पीसफुल महसूस हो रहा होगा। जितने देर आप चाहें
इस अबंडेंस के साथ थोड़ा समय बिताइए। अपने मन के अंदर बोलिए, आई अट्रैक्ट ऑल द अबंडेंस। पृथ्वी में जितनी भी अबंडेंस है, मैं सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, आकर्षण कर रही हूँ। मैं ये सारे ब्लेसिंग्स को आकर्षित कर रही हूँ अपनी तरफ। मेरी लाइफ में अबंडेंस भरी हुई है, प्रचुरता भरी हुई है, और ये प्रचुरता मैं सबके साथ शेयर भी कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। अपने अंदर के वो इमोशंस को फील कीजिए। जब तक आप इस अबंडेंस के साथ रहना चाहे, रह सकते हैं। जब आपको मन करे तभी आप धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए बाहर आ सकते हैं। जितनी देर आप अबंडेंस में रहेंगे, आपको वो पीसफुलनेस फील होगा। Thank you, thank you, thank you. Wow, so wonderful. So wonderful. Thank you, Tapasni ji. कभी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये सुझाव दिया आपने। लोगों को कैसे फील हो रहा है अभी? आप लोग अवेयरनेस में आ चुके होंगे मोस्टली। मालती मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हेलो, गुड इवनिंग तपस्विनी जी। गुड इवनिंग, बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जो किया वो करवाया हमको, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दूर से हमसे जुड़ी, और ये हेमचंद्र दत्त के लिए ही हुआ। उन्होंने बहुत एक अलग सा फीलिंग हो जाता है अंदर से, मतलब थोड़ी देर के लिए ही। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को भी आपकी एक्सपीरियंस हाँ सुन के। हाँ, और और कोई पूछना चाहे तो आप बात कर लीजिए, लेकिन आपसे मुझे ये भी जानना है कि आप जो सिखाती हैं वो क्या कहा आपने, वो नाम मैं भूल गई। हैंडराइटिंग एनालिसिस एक्चुअली। तो मैं जनरली अच्छा अच्छा। हैंडराइटिंग एनालिसिस पे उतना फोकस नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के हैंडराइटिंग एनालाइज किया। वो ग्राफोलॉजी बोला जाता है हैंडराइटिंग जब हम एनालाइज करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा। लोगों का हैंडराइटिंग एनालाइज किया, और जब मैं बोलती थी ये लेटर को चेंज करना है वैसे, ये स्ट्रोक्स वैसे रहेंगे, वो स्ट्रोक्स वैसे रहेंगे, तो जनरली हम्म। वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे। फिर मुझे लगता था अच्छा। कि जान के भी क्या फायदा है अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो उससे अच्छा है कि ग्राफोथेरेपी के ही क्लास करवा लेती हूँ, ताकि लोगों के वो चीजें चेंज हो जाए। तो इसलिए मैं जनरली ग्राफोथेरेपी पे ज्यादा फोकस करती हूँ, जिसमें कि हम लोग अच्छा। हैंडराइटिंग को चेंज करके करते हैं। अच्छा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो आपसे सुन के अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और भी कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे हेमचंद्र जी ने कहा कि टाइम है। मैम, ये कंप्यूटर साइंस क्या होता है? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, तो आईटी प्रोफेशनल।
तो जैसे आईटी कंपनीज रहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो मैं उनमें काम करती हूँ एज ए सीनियर टेक लीड में काम कर रही हूँ। वो एक्चुअली मेरा जो एक्चुअल डिजिग्नेशन है वो हेमचंद्र जी को पता नहीं था, जी तो क्योंकि हम लोग वहां पे एक दूसरे लेवल पे कनेक्टेड हैं, एनएलपी वहां पे, तो इस वजह से फिर हम लोग एक साथ रेकी की भी हीलिंग कर रहे थे। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस किया और मैं नहीं कर रही हूँ। सो वो एक बहुत ही अच्छे हीलर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत ही डेडिकेटेड और डिसिप्लिन पर्सन है। ऐसे भी और भी ईएफटी भी क्लासेस हम लोगों ने किए हैं जो भी, तो वो बहुत डेडिकेटेड है होके करते हैं। बट हाँ, वो बैक टू वो क्वेश्चन कि वो उस हिसाब से मुझे ज्यादा जानते हैं, तो इस वजह से वहां पे कंप्यूटर जायंट उन्होंने लिखा है, और वो जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मेरा डेजिग्नेशन। मैम, पुणे में अभी रात नहीं हुआ? हाँ, रात हुआ है। अच्छा अच्छा, लग रहा मेरा है। बैकग्राउंड। जी नहीं, मेरे पीछे एक्चुअली मेरा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा था, जी तो कहीं उसके आने जाने से डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड ऑन करके रख दिया है। अदरवाइज तो पुणे में तो समंदर एक्चुअली एग्जैक्टली पुणे के अंदर नहीं है, थोड़े बाहर ही है। ओके। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि तपस्विनी जी आगे कोई जन्म में मेरा बहन थी, नहीं तो मैं उसका भाई था। सही सर। हाँ, ऐसा मेरे को सही। लगता है। शी सो केयरिंग अबाउट मी, सो केयरिंग अबाउट मी। ये जो कैनवा पर मैंने जो कुछ बनाए हैं ना, वो टीचर है तपस्विनी जी। वो पुणे से मेरे को डायरेक्शन देते हैं, ये करो, ये करो, ये दबाओ, इसके पास ये दबाओ, अभी क्या आया दिखाओ, बोलो क्या आया है। और दूसरा बात क्या है, वो जो सिखाती है ना, मैं इतना परफेक्टली सीख लेता हूँ ना, उससे भी आगे चला जाता हूँ मैं फिर। एग्जैक्टली, मैं वो पॉइंट पे आने वाली थी, मुझे लगा कि आप खत्म करें तब मैं वो पॉइंट पे आऊं, कि ऐसा हुआ कि मैंने उनको कैनवा सिखा दिया और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कुछ भेज दिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर है, आपने कैसे बनाया, आप प्लीज मेरे लिए भी बना दीजिए। उन्होंने कहा थैंक्स टू माय टीचर। मैंने सोचा कोई और टीचर होंगे इनके, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ओके, बहुत ही अच्छा बनाए। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने आपसे ही सीखा। मैंने कहा बट ये इस तरह के मैं नहीं बना सकती, क्योंकि इतना जो अच्छा जो कलर मॉड्यूलेशन रहता है या जो लिखावट रहता है ना, वो इतने अच्छे से मैं नहीं बना सकती, वो आप बना सकते हैं। तो ये सीखते हैं और इतने डेडिकेटेड वे में सीखते हैं कि बहुत आगे निकल जाते हैं, और बाद में जब लगता है तो वो बाद में हेल्प भी करते हैं, बहुत अपना टाइम पूरा कीमती वक्त देके पूरा करके दे देते हैं बहुत सारी चीजें। जी मेरा अंदर एक डर था। डर ऐसा था कि मैं आगे जाके जूम सेशन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। I have the knowledge with me. I have the skill with me. I know how to present myself. I know. But somewhere something was there as barrier within me. ये जो मैं अभी जूम सेशन ले रहा हूं ना, उसके पीछे है तपस्विनी जी। वो रोज मेरे को धन्यवाद। बोलते हैं, यू कैन, यू गो फॉरवर्ड, यू कैन। आई एम रियली ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। एक्चुअली पिछले जन्म का कोई, हम लोगों को क्या होता है कि हमारे अंदर से जैसे ये सब विकार कम होते जाते हैं, मतलब ये मेरा मानना है। और तो धीरे धीरे हमारे जो सोल ट्राइब के लोग होते हैं, सोल ट्राइब के लोग वो होते हैं जो हमारे सोल के ग्रोथ के लिए बने हैं, वो हमारे सोल के ग्रोथ करवाते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, सारी चीजों में ये करते हैं, तो वो मिलते जाते हैं। तो हेमचंद्र जी भी उनमें से एक हैं। और जैसे इन्होंने कहा, एक्चुअली पास्ट का कुछ कनेक्शन है और वो एक अच्छा वाला कनेक्शन है, जिसके वजह से कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते जाते हैं। পতিতসকল আপোনালোকে কিবা প্ৰশ্ন সুধিছে সোধক। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত দবাপিটা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। মই ওপৰলাক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো কাৰেণ্টটো নাযাওক বুলি। নগাঁৱতো বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। হয়।
Tapasini ji, it is raining cats and dogs here at Dibrugarh. আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি সোধক। नमस्ते, मैडम मुझे एक गुवाहाटी से क्वेश्चन पूछना है। इनविटेशन दी थी सर, आइए एक बार असम में। हाँ जरूर, एक्चुअली मेरा भी मन है कि जाऊं। कामाख्या मंदिर भी जाने का बहुत मन है कब से, तो कभी आऊंगी तो मिलूंगी हेमचंद्रा जी से और आप लोगों से हम भी। लोग से मिलेंगे। एक्चुअली हम लोग कभी मिले नहीं है ऐसे फिजिकली, जो भी आज तक बातचीत हुई है, जो भी सब कुछ ऑनलाइन ही बात हुआ है। इनफैक्ट मैंने इनका चेहरा भी बहुत बाद में देखा, क्योंकि राम सर के क्लास में भी मैं जब ज्वाइन करती थी, मैं जनरली फर्स्ट ऑनलाइन नहीं रहती थी खुद भी, मेरा खुद का स्क्रीन ही ऑफ रहता था, और कौन मतलब क्लास में सर ही बोलते थे, तो ज्यादा पता नहीं चलता था, तो इसलिए हम लोग मिले नहीं हैं फिजिकली। ফণীন্দ্ৰনাথে কিবা এটা সুধিব খুজিছিলে। ফণীন্দ্ৰনাথ, হয় সোধক। हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। जैसे हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों शब्द बहुत सुना जाता है, ठीक है। मुझे जानना है कि आपका नजरिया से व्हाट इज हीलिंग एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। वो एक्चुअली हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ऑटोमेटिकली वहां से ही हीलिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरा ये खुद का मानना है कि स्पिरिचुअलिटी एक चीज है जिसको कि बचपन से ही हमारे साथ वो इनग्रेन्ड रहता है। वो तो हम हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, रास्ता भटक के इधर उधर चले जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअल रहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हम जब एज ज्यादा हो तब जाके हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, जो कि वो एक्चुअली रिचुअल्स पे जाते हैं, तो वो सोचते हैं स्पिरिचुअल रहे। तो हम बस यही है कि हम जब सोचें कि हम भगवान के साथ जो है हमारा एक कनेक्शन है, और भगवान के पास हमें जाने के लिए एक प्योर ये के साथ हमें रहना रहेगा हमेशा। और वो जो प्योरिटी है अंदर से आने के लिए, अंदर जो विकार है, विकार मतलब मैं बार बार विकार बोल रही हूँ, विकार मतलब ये सैडनेस हुआ, एंजाइटी हुआ, जेलसनेस हुआ, एंगर हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ भी हुआ, ये सारी चीजें विकार ही हैं। ये सारे जैसे ही धुलते जाते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे अंदर भी नहीं है, मेरे अंदर बहुत भरे हैं, मैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाती हूँ, बट उसके बाद खुद को फिर टटोलती हूँ। उसके बाद जाके क्या करके हील करना है, जैसे कभी ईएफटी के थ्रू से हील करने से जल्दी होता है, कहाँ पे मैं अपने हैंडराइटिंग को चेंज करके हील करती हूँ, जहाँ पे जो चीजें जैसे ठीक लगे मैं उस हिसाब से अपने आप को हील करती जाती हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस तो आते ही रहेंगे, हमारा काम है कितनी जल्दी वो नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन में चले जाएं। ऐसे नहीं कि अंदर नेगेटिविटी भरी हो, हम अंदर से सैड हैं और ऊपर से हम हंस रहे हैं, वैसे नहीं। वो अंदर का जो है वो हैप्पी हो जाए और बाहर का भी जो है वो हैप्पी हो जाए, तो वो हो गया हमारा हीलिंग। तो हीलिंग बेसिकली तब होता है जब हमारे अंदर का रेजिलियंस बढ़ता जाता है। रेजिलियंस जो कि हम जब गिर जाते हैं, गिर के कितने जल्दी हम उठ पाते हैं। आई मीन लिटरल सेंस में मत लीजिए, फिगरेटिवली लीजिए कि गिरना मतलब कहाँ पे हमें चोट लगी, कहाँ पे हम सैड हुए, और वो सैडनेस से कैसे हैप्पीनेस में आए। तो ये हीलिंग हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए और हमें ये अंदर से प्योर बनाती जाती है।